मेरी रफ्तार विच फर्क नहीं आवेगा। मेरा खुदावन मेरे अगे अगे जावेगा। मेरी रफ्तार विच फर्क नहीं आवेगा।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਜਾਤ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਆ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੰਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਿਸੂ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਤੂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। पलातूस कहता मैंने इसकी तफ्तीश की और मैंने इसमें कोई जुर्म ना पाया, गुनाह तो इन्हें किया ही नहीं। फिर वो गुनाह की कुर्बानी फिर भी दे गया, क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं सी गुनाह किया, आप सारे ने किया। साडे गुनाहां की कुर्बानी यीशु मसीह दे गया और उस कुर्बानी नूं हमेशा अपनी अखां दे अगे रखो कि वो कुर्बानी बेफायदा नहीं दी गई, वो साडी निजात लई दी गई, वो साडे कफारे लई दी गई, ताकि असी उस कुर्बानी के वसीले नाल छुटकारा पाइए और खुदा दे कोल जा सकी, उत्थे जिथे लोग फरिश्तियां वर्गे होणगे। हालेलुया। अगर तुसी आसमान दी बादशाही जाना चाहुंदे आ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਨਾਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਤੇ ਅਜਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹੀ ਢੇਰ ਨਿਕਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਗ ਹੈ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਸੰਗ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, क्योंकि खुदा दा कलाम कहता अगर खुदावन मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। अगर खुदा साडा मददगार ना होवे फिर असीं हुण कदों दे मर मुर जाना सी। ये खुदा दी बख्शिश दा मुहब्बत ओदी कि उन्हें सानू जिंदा रखिया ताकि असीं ओदे तक पहुंच जाइए, यीशु नू जान जाइए और अपनी जिंदगियां यीशु नू दईए ताकि यीशु ने जिहड़ी निजात साडे वास्ते रखी असीं ओनू हासिल करिए। सारे अखां बंद करो, अपने हत्थां नू उठावांगे, सारे मिल के गावांगे। जे संग है यहोवा, तुसीं यीशु नू दिल तो ये गीत गा के उदों वैलकम कहो अपनी जिंदगी च, उन्होंने खुश आमदीद कहो। जिन्हों ने कदी भी गीत नहीं गाए भी गाउणगे, ताड़ी भी वजाउणगे ताकि खुदा तुहानू बरकत देवे, क्योंकि उन्हें तुहानू अपने जलाली बनाया ताकि तुसीं उहदी हमद कर सको। अपना मुँह बंद नहीं रखना, क्योंकि मुँह वो बंद रहिंदा जिते शैतान ने कब्जा किया। तुहाडा मुँह यीशु ने पाक कर दिता। ये मुँह की कीमत अदा हो चुकी है और ये मुँह खुदा दे जलाली खुलने चाहिए आ। सारे अपनी अखां बंद करांगे, अपने होंठां नूं खोलांगे, पुरजोश अंदाज दे नाल गीत गावांगे। जे संग है यहोवा ते किसी दी क्यों पाले है, तू ना घबरावी, यहोवा साडे नाल है। हालेलुया। जोर दा ताली, जोर दा ताली इस शुक्रगुजारी च वजाउणी आ कि यहोवा खुदावंद लश्करां दा खुदा साडे नाल कदी भी साडे कोल हट नहीं होना, बल्कि वो साडे चारों तरफ खड़े होए आ अपनी सदी पनाह च। सारे अपने सामने सवाल जे संग है यहोवा
त्याग और मसा मांगो। सब हाथ को उठाओ, खुदा तेरी आग मसा मुझ पर आए। सजीदा होकर खुदा का मसा अपने लिए मांगेंगे। हालेलुया। प्रेस, सबने हाथ को उठाना है। सब हाथ को उठाओ, कहो खुदा मैं चाहता हूँ तेरी आग मसा और हजूरी आए। सब बोलो, उस मसा को फील करो, खुदा की हजूरी को। सब बोलो, जोर जोर से बोल रहे हैं। ओ खुदा तेरी और राग आए, और राग मसा हजूरी से भर जाए। एक एक पर तेरा मसा आए। हालेलुया। ओ फायर बिलो फॉली बिलो तो शाली बोलोरिया। यस बाला तो शाली बोलोरिया रा। बोलेंगे जोर से। हालेलुया। तेरा मसा एक पर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मसा एक पर आए। हालेलुया। रिफल बरता शलीबो। ओ खुदा तेरा मसा एक पर आए। एक पर और राग मसा रिफलोरिया। फिलोपोरिया फल बरता शलीबोरिया। हालेलुया। सब खुदा के कलाम के लिए दुआ करो, दिल से उसका कलाम मांगो। वही कलाम जो आपको आज़ाद करे, खुदा के जलाल उसकी बादशाही के लिए तैयार करे। आपके अंदर और ज़्यादा ईमान बढ़े और आप खुदा के बड़े बड़े जलाली कामों के लिए तैयार हो सको। सब संजीदगी से बोलेंगे, तवज्जो करके, बोझ के साथ कि खुदा मैं वाकई चाहता हूँ कि तू मेरी रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अल्फाज में खुदा से कलाम मांगो। प्रेस बिला रफल बरत शाली फोलोरिया। खुदा तो ही जलाली कदूस बला और अजीम खुदा है। सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं। खुदा तो कुदरत और कुव्वत वाला खुदा है। तो ही अपने लोगों के साथ रहता और तो रहनुमाई करता है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे आज रूत की किताब है, पहला बाब 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पूरे ध्यान से सुनना है। खुदा का कलाम जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। हमेशा ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं, ये आयत हमेशा दोहराई जाती है। और कभी कभी पता चलता है ऐसे लोग जो चर्च में पीछे रह गए, जिनकी जिंदगी में नुमाया कोई बरकत नजर नहीं आती, अगर आप उनसे पूछोगे तो उनको वाकई वो हवाले, वो कलाम भी नहीं आता होता। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अमल से भी, जुबान से भी पता चलता है कि ये लोग जानते हैं, ये सीख चुके हैं, इनको समझ है कि क्या करना है। ऐसे लोगों की जिंदगी में आपको वाकई एक बरकत जो है वो नजर आएगी। खुदा उनके कलाम में रूत की किताब पहला बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत तक लिखा है, सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आए।
जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नोमी है। उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम मुझे क्यों नोमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मदई हुआ और कादर मुतलक ने मुझे दुख दिया। खुदा का कलाम जिससे हम बरकत, निजात और बहुत कुछ पाते हैं, इस कहानी को समझना है। ये कहानी एक ऐसे ईमानदार की है जो एक गलती करके अपना सब कुछ खो बैठा। ये कहानी एक ऐसी ईमानदार औरत की है जो कलीसियाई मेंबर थी, लेकिन एक गलती करके उसने अपना सारा कुछ खो दिया। खुदा के कलाम में लिखा है, नोमी नाम एक औरत है, कनान के अंदर रहती है, बैतलहम के अंदर। बैतलहम के अंदर रहते हुए, यह काजियों का दौर था। काजियों का दौर बादशाहों के जमाने से थोड़ा फर्क होता था। बादशाहों का सेटअप ज्यादा मजबूत था, ज्यादा ला होते थे। काजियों के थोड़ा सिस्टम जो था वो फर्क होता था। जब ये काजियों का दौर था, नोमी नाम औरत बैतलहम के अंदर रहती है। बैतलहम में रहते हुए, खुदा के शहर में रहते हुए, अचानक उस मुल्क के अंदर काल पड़ गया। एक वबा आई, रोटी मिलना मुश्किल हो गई। तो ये औरत थोड़ी जहन की चालाक थी। कई दफा बड़े बड़े ईमानदार खुदा में होते हुए जब कोई आजमाइश आती है, एक बात जहन में रखो, आप बड़े ईमानदार हो या आप छोटे ईमानदार हो, ईमानदारों की जिंदगी में भी तूफान आते रहते हैं। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैंने तौबा कर लिया है, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अगर मैंने दुआ करना शुरू कर दिया है, मैंने पैसा देना शुरू कर दिया है, बीज बोना शुरू कर दिया है और मैं रोजों में लग गया हूं, अब कोई मुझ पर आजमाइश नहीं आ सकती, अब कभी हालात खराब नहीं हो सकते। ऐसा सोचती है कलीसिया, लेकिन ये सोच रॉन्ग है। ऐसा नहीं हो सकता। जिस कश्ती में खुद यीशु मसीह सवार थे, तूफान उस कश्ती पर भी आ गया था। आया था या नहीं? ये अगली बात है कि वो कश्ती तबाह नहीं हुई, वो कश्ती बच गई थी। शागिर्दों को मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ी। कितनी देर तक? उस कश्ती में भी बार बार तूफान का पानी आता था। शागिर्द जोर मार के वो पानी निकालते थे, तूफान तेज था, फिर से उसके अंदर पानी आ जाता था। एक ईमानदारों का ग्रुप, रसूल कहा जाता जिनको, उस कश्ती के अंदर, और खुद यीशु मसीह उस कश्ती के अंदर है। लेकिन तूफान उस कश्ती को डुबो देना चाहता है, बार बार पानी से भर जाती है। रसूल जो ईमानदार हैं, उनको पूरा जोर लगाना पड़ रहा है कि हम अपनी जानें बचा सकें। और यहां तक नौबत पहुंची, उन्होंने कहा हम हलाक हुए जाते हैं। कहा खुदावंद उठ, असी मर चले हैं। एक ईमानदार उस हद तक पहुंच गया कि वो ये समझ बैठा है कि मेरा बचना ही मुश्किल हो गया। ईमानदारों पर भी तूफान आते हैं, आजमाइशें ईमानदारों पर ही आती हैं। सो ईमानदार पर जब आजमाइश आती है, जब मुश्किल हालात आते हैं, जब कोई तूफान आता है, जब कुछ ऐसा होता है, उस वक्त ईमानदार का कायम रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब कोई आजमाइश आती है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपका छक्का लगने वाला होता है। अगर उस आजमाइश में आप कामयाब रहो
तो आप एकदम से 100 गुना बढ़ने वाले होते हो। और दूसरा, ये वो वाला टाइम भी होता है अगर उस आजमाइश में आप गिर जाओ तो आप वापस 0 पर जाने वाले भी होते हो। दोनों चीजें हैं आपके हाथ में। जब आजमाइश आती है, ये आपके हाथ में है। इस आजमाइश से आपने 100 गुना आगे बढ़ना है या आपने गिर कर वापस 0 पर जाना है, ये खुदा के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। जब कुछ ऐसा आए एक ईमानदार पर, हालात मुश्किल हो, कोई बीमारी का अटैक आए, कुछ और ऐसा हो। आप जानते हो यूब पर जब आजमाइश आई तो उसके बाद वो उस आजमाइश ने उसको गिराया नहीं, मारा नहीं, हलाक नहीं किया। क्या किया? उस आजमाइश ने उसको डबल कर दिया था। आमीन। आजमाइश से पहले अगर उसके पास 7000 भेड़ें थी तो आजमाइश पर पूरा उतरने के बाद उसके पास 14000 भेड़ें थी। जो कुछ भी उसका था सब कुछ डबल हो गया था। एक ऐसा तूफान जिसने क्या किया? अय्यूब को, जोर से बोलो, क्या किया? उसने उसको डबल कर दिया। आप उसी जगह पर हो। अगर कोई आजमाइश आती है, कोई हालात की खराबी आती है, कोई बीमारी आती है और आप उसमें कायम रहते हो तो आप यीशु नाम में 100 गुना आगे बढ़ने वाले हो। अगर उस आजमाइश में आप गिर जाते हो तो आप मर भी सकते हो, तबाह भी हो सकते हो, 0 पर भी जा सकते हो। आजमाइश आई, आप कायम नहीं रहे। सो होता क्या है, नोमी जब बैतलहम के अंदर है, जो है ही रोटी का घर। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर है। वो रोटी का घर, वो एक बरकत का पॉइंट है। वहां पर कसरत की बरकत नाज़िल होती है। नोमी वहां है, जब तक रोटी मिल रही है बैतलहम के अंदर है। ज़हन की थोड़ी चलाक है ना। अचानक रोटी बंद हो गई, क्या कहा? उन्होंने कहा चलो आपा छाड़ के और पासे चल जाने, जिधरों दाल आगदा उधरों ला लो। आज चर्चों में भी ऐसा है, जिधरों राशन मिलता उधर चल जाओ। सो क्या होता है, जब ऐसा हुआ उसने अपनी चालाकी से काम लिया। उसने बैतलहम को छोड़ा और वो उसने देखा कौन इलाका नजदीक है, कहां पर ज्यादा बेहतर हालात हैं। उसने कलाम पर तवज्जो नहीं की कि कलाम क्या कहता है। वो फौरन मुआब के इलाका में चली गई। वो इलाका ऐसा था जिस पर खुदा की लानत थी। उसके बारे में कहा गया था कि कोई मुआबी, कोई अमोनी कभी खुदावंद की जमात में दाखिल ना होने पाए। 10वीं पुशत तक उनको लानती करार दिया गया था, मना किया था अटैचमेंट से। ईमानदारों का कोई तल्लक उनके साथ ही होना चाहिए था। अभी 10वीं पुश्त में नावी चल रही थी। 9वीं पुश्त में जो नोमी थी, ये रोटी की खातर, एक ज़ाहिरी बरकत की खातर, थोड़े से फायदे की खातर, सिर्फ एक रोटी के लिए इसने क्या किया? इसने रोटी के घर को छोड़ा, बैतलहम को छोड़ा और ये मुआब में चली गई। ये भूल गई उन हवालों को, भूल गई उस कलाम को, छोड़ दिया उस बात को। जब गई, एकदम नहीं कुछ भी हुआ। जब गई है, अपना पूरा खानदान साथ ले गई। 2 इसके बेटे थे, उसका शोहर था, खुद थी। ये 4 लोग बैतलहम को छोड़कर गए वहां पर। छोटा एक खूबसूरत कामयाब खानदान था। जब जाते हैं वहां पर, ये टोटल मुआब के अंदर 10 साल इसने गुजारे। 10 साल ये मुआब के अंदर रही। 10 सालों के अंदर क्या होता है, जब वहां पर जाती है, थोड़ा टाइम गुजरा, सबसे पहला काम क्या हुआ? चंद सालों में इसका शोहर मर गया। एक बड़ा हादसा एक औरत के लिए। एक औरत जिसका शोहर, दुनिया तबाह हो गई उसकी, हर चीज अनबैलेंस हो गई, सब तरतीबें खराब हो गई। रोटी को छोड़ो, बड़ा मसला आ गया। अब खानदान का सरबराह ही नहीं रहा है, क्योंकि वो रूहानी सरबराह को रिजेक्ट करके आई है। उसने जिंदा खुदा और उसकी कलीसिया को रिजेक्ट किया है। जब उसने खुदा को रिजेक्ट किया, उसके घर को छोड़ा, उस कलीसिया को छोड़ा,
खुदा को अपना सरबराह नहीं रखा उसने, तो खुदा ने उसके घर का सबसे पहले सरबराह जो था वो खत्म कर दिया, उसका शोहर मर गया। अब खानदान बगैर सरबराह किया, क्यों? क्योंकि उसका रूहानी सरबराह भी नहीं है। उसने खुदा का वेट नहीं किया कि अगर आज कलीसिया के हालात खराब हैं, आज कुछ नहीं, खुदा करेगा, कल को बेहतरी आएगी। उसने ये नहीं सोचा, उसने फौरन अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया, सरबराह खत्म हो गया। थोड़ा टाइम गुजरा, उसने अपने दोनों बेटों की शादियां कर दी। शादी को अरसा गुजर गया, दोनों बेटों की कोई औलाद नहीं, दोनों बेटों की कोई औलाद नहीं। एक टाइम गुजरा, अब दूसरी परेशानी आई है। थोड़ा टाइम गुजरा, एक बेटा मर गया, दूसरे के फिर औलाद नहीं। थोड़ा टाइम गुजरा, वो भी मर गया। आज खानदान का नामो निशान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बाइबल बयान करती है जो जिस्म के लिए बोते हैं वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेंगे, जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी पाएगा। किस चीज के लिए गई थी? रोटी के लिए। किस रोटी किसको चाहिए? रूह को, जिस्म को? जिस्म को। रोटी के लिए गई ताकि मैं जिंदा रहूं, जिस्म के काम के लिए, जिस्म को एंजॉय करना। आज जितने लोग जिस्म को एंजॉय करते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं। जो लोग रूह के मुआफिक चलते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं, 100% कामयाब होते हैं। सो क्या किया है? रूह के मुआफिक नहीं, रूह के मुआफिक चलना मतलब कलाम के मुआफिक, कलाम के मुआफिक नहीं। कलाम कहता मुआब में नहीं जाना, जिस्म कहता है उधर रोटी है चली जा। बड़े सारे लोग जब को फायदा नजर आता है भूल जाते कलाम नो। केड़ा कलाम? कोई नहीं, ठीक है, तुक्का लगन दिया, पर आपको ये नहीं पता इसका एंड क्या होने वाला है। आज आपने देखा है, आपको ये नहीं पता कल हालत क्या चेंज होने वाली है। जिस्म को जो लोग एंजॉय करते हैं, जो जारी और फौरी फायदे वाला काम करते हैं, वो एक बड़ी बरकत से महरूम रहते हैं। जिस्म के लिए गई, जिस्म तबाह हुआ। जो जिस्म के लिए बोता है वो हमेशा जिस्म से कौन सी फसल काटता है? हलाकत की फसल। हलाकत ही आनी थी, हलाकत आई। शोहर गया, बेटों के औलाद नहीं, बेटे मर गए। आज वाहद है, बहुएं दो बहुएं हैं जो उनका कोई खानदान को तल्लक नहीं बनता उसके साथ। आज वो तन्हा रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि रोटी के लिए सारा कुछ। आज कलीसिया किसके लिए कर रही है? कहते काम तो लेट होने आज नहीं आया जाना, दुआ थे। जो कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? 100 में से 10 लोग हैं आज जो रूह के मुआफिक चलते हैं। बाकी सब लोग उस तरह से चलते हैं जिस तरह जिस्म कहता है, जिस्म के मुआफिक। इसलिए कलीसिया के अंदर होते हुए ये कलीसिया की औरत है, हलाकत के अंदर गई, तबाही के अंदर गई। आज तक उसकी गवाही को पढ़ा जाता है, ये कलीसिया की थी। और क्या एंड हुआ? खानदान तबाह हो गया, सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि रूह के मुआफिक नहीं चली। अगर चली है तो जिस्म के मुआफिक, रोटी के लिए, बदनी जरूरतों के लिए, बदनी फायदों के लिए। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो बाइबल में, सब खानदान खत्म हो गया है। वजह ये वाली है। सो जब आप पर कोई आजमाइश आती है, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका एक बहुत बड़ा छक्का लगने वाला है अगर आप आजमाइश में कायम रहो। इसलिए कलीसिया को हमेशा खुदा की हिजरी में कायम रहना होता है। अगर आप कलाम पर कायम रहोगे तो आप बढ़ते जाओगे। जब आपको लोग दुख में देखेंगे, जब लोग आपको हकारत की निगाह से देखेंगे, आपको नाचीज समझेंगे, जल्द खुदा उनके ज़हन को चेंज करने वाला है, आपको चेंज करके उनके सामने लाने वाला है। वो सब जो आज आपको और तरह से देखते हैं, कल को वो और तरह से देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आज आप आजमाइश में हो, लोग आप पर बातें बनाते हैं, आपको हकारत की निगाह से देखते हैं, छोटा समझते हैं। अगर आप इस आजमाइश में आप वफादारी के साथ चलते रहो,
नीट क्लीन होकर खुदा के साथ चलते रहो, तो कल को खुदा आपको और नुमाया करके दुनिया के सामने लाने वाला है। लेकिन जब आप आजमाइश में पूरे उतरते हो, सो एक आजमाइश थी कलीसिया पर, एक आजमाइश थी कि है बैतलहम रोटी का शहर, लेकिन रोटी नहीं है। क्या हुआ नहीं है तो रोजे रख लेने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं, फौरन पासा पलट लो, चल मुआब में। बेशक वो मना है, बेशक नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना है? रोटी तो लभेगी। तो उस रोटी ने क्या दिया? हलाकत, खानदान की तबाही, सब कुछ खत्म। अगर आप जिस्म के लिए काम करेंगे तो एंड उसका यही है। अगर आप रूह के मुवाफिक चलोगे तो आप जिंदगी पाओगे और हमेशा की जिंदगी पाओगे। इसलिए जीजो, नोमी की कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा सीखने वाली कहानी है। नोमी का मतलब था खूबसूरत, पसंदीदा, खुशगवार शख्सियत, ये उसका नाम था। ये नाम कब तक था? जब तक वो बैतलहम के अंदर थी। खुशगवार शख्सियत है वो, एक खुशी का माहौल है। लेकिन वापस आती कहती मुझे क्या कहो? मारा, जिसका मतलब है कड़वापन, कड़वाहट। आज उसकी जिंदगी के अंदर स्वाय कड़वाहट और पछतावे के और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनियां मन मानियां कीतियां हर जगह। कोई कौन है जो मुझे रोके? हाँ, कोई भी नहीं रोकेगा, ये तो पक्की बात है। रोकेगा कोई नहीं आपको आके, लेकिन भुगतना आपने खुद है। ये है, खुदा भी नहीं रोकता। खुदा ने एक दफा नहीं कहा कि नोमी ना जा। खुदा ने क्यों नहीं रोका? खुदा कहता मैं कह चुका हूं बाइबल में, पहले मैंने कलाम नाजिल किया हुआ है कि कोई मुआबी, अमोनी वो खुदा की जमात में शामिल ना हो। यह कलाम आपको पता होना चाहिए था। आज लोगों को पता है, लोग ने एवं कन्ना के मार जाते ने, पता सारा ही हुंदा है, लेकिन एवं मड़ जाना, ढीठ जे बन जाना, गल नूं घुमा फिरा जाना। लेकिन अजीजों याद रखो, वो सारी बातों से आप अपने आप को मुतमिन कर सकते हो, पर खुदा को नहीं मुतमिन कर सकते हो। खुदा हकीकत को जानता है, खुदा हकीकी खुदा है, वो आपकी हर चीज को देख रहा है। सो कहां पर थी? बैतलहम के अंदर। कहां पर है आज? आज वो कहती नोमी भी ना कहो मुझे। क्यों नोमी ना कहो? मैं तो भरी हुई यहां से गई थी और मैं खाली आज वापस आई हूं। मेरा खुदा मेरे साथ कैसे पेश आया? तलखी के साथ। खुदा क्या करता है मेरे साथ? तलखी से पेश आता है, गुस्से से पेश आता है। क्यों भाई? क्यों खुदा तेरे साथ तलखी से पेश आता है? तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तूने खुदा के दिल को तोड़ा है। जब तू बैतलहम को छोड़कर गई, तूने नहीं सोचा खुदा को अच्छा लगा या बुरा लगा। आपने जो किया, आपने एक बार नहीं सोचा मेरी इस हरकत से कलीसिया पर क्या बात आएगी, खुदा के लोगों पर क्या बात आएगी, मेरी इस हरकत से खुदा पर लोग कौन सी बातें कहेंगे। आपने नहीं सोचा। अब खुदा भी गुस्से में है। इसलिए लोग पूरी पूरी जिंदगी, जैसे नोमी जलील हुई, आज की कलीसिया के बड़े सारे लोग ऐसे जलील होते हैं। क्यों? सिर्फ अपने दिल के मुवाफिक चलना है। खुदा नहीं चाहता नोमी ऐसी हो। और अब देखो, जब नोमी वापस आई, नोमी वापस आई, जैसे वो फिर बैतलहम में आई, मुआब को छोड़कर आई, हालात चेंज होना शुरू हुए। हालात चेंज होना शुरू हुए, लेकिन चेंजिंग का वक्त थोड़ा था। बुढ़ापे के अंदर जाकर रूत को, जो उसकी नौ थी, खुदा ने एक बेटा दिया। और नोमी उस बेटे को ये कहकर उठाती है, कहती है ये खुदा ने मुझे दिया, ये मेरा है। सो खुदा ने उसको फिर से ब्लेस तो किया, लेकिन किया कब? जब वो वापस आई है। खुदा बरकत देना चाहता है। आप 20 साल मुआब में घूमते रहो और हर रोज दुख उठाते रहो। आप आज वापस अपनी जगह पर आओ, बैतलहम में। आज खुदा के कदमों में आओ, आज उस जगह में आओ। यहाँ पर दुआ है, यहाँ पर रोजा है, यहाँ पर पकीजगी है, यहाँ पर मोहब्बत है, यहाँ पर मुआफी है, यहाँ पर रहम है, यहाँ पर दूसरों का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर सच बोला जाता है।
आज ऐसी जगह पर आ जाओ, अपने आप को ऐसा करके पेश करो, हालात चेंज होने वाले हैं यीशु नाम में। खुदा चेंजिंग लाना चाहता है। खुदा बगैर वजह के गुस्से में नहीं आता। खुदा गुस्सा उस वक्त करता है पंजाबी जो पानी वाकई सिर तो लंघ जाता है, उस वक्त खुदा कहता है लगा दे आग, सबको जला दो। उस वक्त खुदा कहता है भाई नू हट जा, हुण इन्हां नू पानी नाल ही मारना है, क्योंकि अभी बात वाकई सर से गुजर गई है। कई दफा लोग एक गलती करते हैं, खुदा कुछ नहीं कहता, 2 करते हैं, 3 करते हैं, लेकिन आखिर तो पकड़ आनी आनी है और फिर आप नहीं जानते क्या होने वाला है। लेकिन अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा चाहता है आप कभी मुआब में ना जाओ, कभी ऐसी जगह पर ना आओ यहां पर काल पड़ जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि आपको कभी उसको भुला ना सको। अजीजों, खुदा चाहता है आप नोमी से सीखो। नोमी रोटी वाले घर में है, जिस्म के लिए गई, सब कुछ खो के आई। खुदा खोना नहीं चाहता बल्कि आपको 1000 गुना ब्लेस करना चाहता है। खुदा ने कहा मांग और मैं तुझे दूंगा। खुदा देने वाला है, खुदा ब्लेस करने वाला है। खुदा कहता है मांगने से मैं दे दूंगा। खुदा का वादा क्या है? मेरे तालब किसी नेमत के मताज, पर जब अब तालब बन जाते हो, चाहने वाले, पसंद करने वाले खुदा को, खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले, उस वक्त बरकत आती है। खुदा ने आपको कलीसिया के अंदर रखा हुआ है। कलीसिया खुदा का घर है, कलीसिया खुदा का बदन है, कलीसिया एक बरकत वाली जगह है। पर जब आप इसको छोड़ छोड़ कर भागते हो, उस वक्त नोमी वाला हाल होता है। खुदा नहीं चाहता आप जाओ। खुदा कहता है बैतलहम में कितने साल लगे? 10 साल बाद आई। वहां पर जिन लोगों ने 10 साल गुजारे, क्या वो मर गए थे? नहीं, वो तो सब उसी तरह से थे। एक बड़ी बरकत उनकी जिंदगियों में से। जब नोमी वापस जाती है, कुछ भी उसका अपना नहीं, कोई जमीन नहीं, क्योंकि औरतों को हिस्सा नहीं मिलता था। जो उसके खानदान के लोग थे वो सारी उसकी जमीनें वगैरह ले चुके थे, वो खुद छोड़कर आ गई। अगर उसका शोहर होता, बेटे होते, तो उसकी जमीनें होती, लेकिन उसने अपनी गलती से सब कुछ खो दिया। आज वापस गई है, आज उसको किसी के खेत में फलियां जो है वो चुनना पड़ती हैं, अपने खेत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बरकत को खुद छोड़ा है। खुदा कभी आपको कोई काम देता है, कोई खिदमत देता है, आप रोटी के लिए उन नेमतों को, उन बरकतों को, उन ओहदों को खो देते हो, उस बलाहट को खो देते हो, पर नहीं जानते कि फिर सारी उम्र आपने वो फलियां दूसरों के खेतों में से आपने चुननी है। आपका अपना कोई खेत नहीं, लेकिन खुदा आपको खेत देता है। खुदा ने इसराइल को कहा था मैं तुम्हें आजाद मुल्क दूंगा, यहां पर तुम अपनी जमीनों के मालिक होंगे। आज भी खुदा कहता है मैं कभी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा इतना प्यार करता है कि यीशु ने आपके लिए अपनी जान सलीब पर दी। जब आप यीशु के कफारे को मानते हो, अकरार करते हो, कबूल करते हो और बिल्कुल लफ्ज बाई लफ्ज खुदा के साथ चलने का अहद करते हो, खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू होती हैं। सो खुदा आप सबको इस कलाम की से बड़ी बरकत बख्शे। हालेलुया।